Hello everyone. As you might be knowing if you attended the last session, I am Rajneesh Kumar. I am a third Third year year undergrad. undergrad. I'm I'm sorry, sorry, this this is is Nick. Nico. Okay, it's fine now. Okay, so basically I'm a third year undergrad at IIT Kharagpur and I'll be your host for today's session. And huh, so let's start. Uh, so before we start, I'll just give you a brief about how we are going to proceed with this session or this workshop. So as we have told you that this is going to be an introduction for open source and DevOps, and in this we are going to learn about the two very basic and fundamental topics or tools, that is Git and GitHub, right? So okay, so first we will understand or we'll get to know about what is DevOps and what is open source, right? And once we are done with it, uh, and what is the use of Git and GitHub in it, and once we're done with it, we'll start with the basic about Git and then about GitHub, and then we'll use the both in action. Uh, and meanwhile, if we will stop for doubts in between, but I encourage you to ask a doubt as soon as you get it by simply switching on your mic and or typing in the chat, like whichever you way you feel comfortable. Uh, so yes, so basically we'll this is what I said. We will have an intro about DevOps and open source, and then we'll go with the uh, installation part. And once we're then we'll see that why we need Git and GitHub, and then the uses of it, and then its features. So this is the basic outline. Uh, I guess I'm audible to everyone in you, right? Yes, yes, you're right. Okay, great. Just give me a second. Fine. Uh, okay, so let us start with DevOps. So, what is DevOps or what is the need of DevOps? So, before we get into that, I'll tell you like a kind of story, right? So, basically, if you're working like all of you will after 2 to 3 years will be working in like any software firms or anything. So, if there's a product-based company and let's say there's Facebook, right? So basically, there are two teams. One is the development team and one is the operations team. So if you see the word DevOps, it is meant from development and operations. So what used to happen that these two teams used to work separately, and the development teams was responsible for writing and building the code, and operations team was there to just host the code or to matlab to host the code and just and then to provide their feedbacks, right? But this used to be a very frictional process, and it used to take a lot of time. And then came the concept of DevOps. So basically, this is we are going to understand the infinity loop. That is the very fundamental topic of DevOps. So DevOps is like more of a culture or more of a philosophy, which basically work as in the development team or let's say the dev team first plans. Okay, like Facebook today plan. Okay, I have to add a feature, right? So that feature might be adding a dislike button, right? So basically they plan out things. Okay, what will they do now? They'll code it, right? And once they are coding, they use version control systems like Git and GitHub. And this is like, if you see, this is the very first part of a DevOps role. Sorry. Okay, okay, they are done with writing the code. Now what they have to do, they have to build the project, right? If it's Android, they use Gardle or something, or for other projects they use Maven. These are basically tools. You can Google about them, right? uh, okay. And then they will test if there are any bugs, and for that many of them use Selenium. And once they are done with testing, the operations team is responsible for deploying it, and then operating with the tools like Docker and Kubernetes. And after they are done, they will monitor, acha, is the dislike button functioning for everyone, and then based upon which they will provide feedbacks. And this basically acts like an infinity loop. Like they again, okay, based on the feedback, they will again plan, code, build, test, deploy, operate, and monitor. So basically, first this there used to be a huge gap in this, and now they have made it in a loop. So the teams now work very efficiently. And also, don't worry, we'll provide all of these slides to you at the end of the workshop, so you can just uh,
like as of now focus on learning things. Okay. So so basically here we are going to understand the first and the very basic part of DevOps role, that is a Git, using tools like Git and GitHub. Okay, that was about DevOps. What is open source? So most of you would have heard this word open source. So basically, open source or open source software is a software that is distributed. But basically, this is distributed for free, and you can even its code is readily available, and you can just modify and use it the way you want. Some of example of which are like Firefox. Many of you might be using Linux, or let's say the VLC media player that you see, Chrome browser that you use. All of it is open source, and you don't have to pay any fee for using such software. So that is the basically philosophy behind open source. And also, since these tools or these softwares are not just made by one person, a lot of person collaborate together to build such beautiful and robust softwares. And for a number of people to collaborate, they need a tool like Git and GitHub, so that they can collaborate effectively. So till here, we have just explained you what is DevOps and what is open source. So I guess I'm clear to all of you. Yes, sir. Okay. So okay, this was just a brief. Or even if you have any of you have like want to explore any further, you can simply Google about or YouTube में search कर लेना कि what are DevOps, and you will find amazing videos like, and they are like really helpful. So okay, so once we are done with it, let's hop in to what we have to do. So in like first, as I have promised, that we will learn about the first tool, that is Git, right? So okay, so I recommend that all of you, let's install Git, right? And then I'll explain what is the use of it. And should I explain you for like what is the use, then you will install, or should we install first and then understand its use? I suggest install first, then. Okay, great. So can you see my browser? Yeah. Okay, so just go to this link. I'll type the link in the chat. Okay, okay. Akash, can you please check? I can't access the chat. Yeah, 1 second. Actually, Okay, it isn't present right now. sorry, Akash. 1 second, I'll just see to Oh, it. sorry. I thought. Oh. No worry, no worry. Oh, please, please. If not, okay, just mm, okay. By the time I'll just post the chat. Harsh, can you please send the link in the WhatsApp group? I'm Or meanwhile, you can check the Discord. I have sent you the link in Discord events channel. Or if you can't go, like just okay, just follow my step. Type Git. Are you following along with me? Just forget about the link. Just type Git in your like Google. Can anyone of you please do this? Uh, Yes, yes. Yeah, okay. yeah. Downloaded So it. just type Git, and the first link that you get, go on it and click on downloads. Once you click on downloads, depending upon the OS that you are using, uh, so simply like many of you must be using Windows, so simply click on Windows and it will start downloading. Just select a location. So please tell me if once you have downloaded it. downloading. I Okay, have great. downloaded it, but while installing, Hmm. it's showing too much, check marks. Okay, okay. Just wait for a minute. I'll just do along with you so that you don't have any. Sure. I'll just share my screen again. Okay. Could you verify if the chat is enabled? Anyone? Yeah, it is Uh, not. I guess it is not working for me. I cannot send a message like I have the chat, but I can read it, but I can't. Okay, I cannot send.
Yes, Not a big deal. Just follow along. Just leave the chat thing and just follow along. So if you have downloaded it, it might be coming like this. So simply click on next. Click on next. Okay. Just go on doing next and next. So just wait for a few seconds. It will install. Okay. So did you guys follow along with me? Yes. Okay. So if you have followed, then either you can just go to Windows and type git bash. It will have something like this, and if you click on it, uh, something like this would open up. Yes. Okay. Okay. Awesome. Uh, so this basically we have installed Git in our local machine, and then okay. So okay. So basically, all of you have, like, if any one of you is having any trouble in installing, then please ask us. I guess everyone has like okay with installation part. Yeah. Okay, great. So let's move on ahead. Uh, so I'll understand. I'll explain you what is the need of Git or GitHub. Okay. So like leave everything. I'll just explain you that suppose you start building a let's say if you have used Clight app, let's say you start building the Clight app's clone, right? Or just the Clight app only. You start to thinking like, okay, I have to uh, make my own thing, so I'll just start coding it, right? So but the problem is like, okay, so you started coding and you then implemented the authentication feature, like that is you can enter the phone number, you get an OTP, and you have like this is working fine. And then you start to think, okay, now I have to make, like, I have to code the notes feature through which I'll get notes. But let's say in the process of making like coding for the notes feature, you somehow ended up messing up with the previous code, and now none part of like, and like your whole code is not working. You try to do control z, but even when you went back, your, let's say, your authentication part was also not working, right? So this is a nightmare for you, because your whole work will be just wasted, right? Or let's say another use case, let's say you and your friend also start like think of doing a startup together, but the thing, you both have to code, but let's say how will you do, because some part of code will be written by you and some part of it will be written by your friend. So to to answer and to solve all these problems, Git and GitHub came into picture. So before we go to GitHub, first we'll understand what is Git, and then we'll go to GitHub, right? So basically, Git is a software that is used to track your projects, right? So basically, you can just have like different backups. Okay. Hmm. So let's say our first use case scenario that you coded the first feature, that was the authentication part. Then you can simply go and like tell Git, okay, I've done this, just keep this part ready. If I ever come back to you and ask for like this authentication part, you will return the exact same working part to me, right? You and Git said, okay, this is your you gave me the like you, like how to go to a bank and you give them your cash, they will give you receipt. So
in the same way, Git gives you a receipt of your code, right? And if you by any chance lose like any part of your code is not working, you can simply go to Git and tell, hey, remember that code that I gave you, this is its number, can you please return that code to me? Git will say, okay, fine, just take this code. And now like your whole code is not wasted. The so basically like what is the good practice? Every time you code a feature, you simply go to Git and submit your code, and you get a receipt in like return, so that most part of your code is safe. Like what how like if you, let's say you start making money, what you do, like whenever you earn, you just put that in the bank so that it is safe, right? Because you are safe from thieves, you are safe from like any type of demonetization or anything, right? So in the same way Git works, that Git keeps your code like keep a backup of your code and help you to experiment without worries. And these are like simple points. uh, so basically this is what Git is. Let's understand with the example. Like, did you guys understand what is the use of Git and what is the need of Git and in general? Basically just for a backup in case. Just initially for a backup, but later on you can like use like let's say ki you coded a feature, right? But in, like without losing it, you want to experiment further, so you can just uh, go to Git and give it to Git, and Git will keep it safe, and so that you can experiment. And if your experiment did not work, you can take that code, or if it worked, it can you can just merge that code with your original one. But what if someone changes the code in the Git itself? No, like Git is not a Git is not a person, right? Git is like a, you can like No, like say I have the access to the code. On the other hand, my friend also have the access to the code. So no, so somehow he basically changed the code. Then Mhm. the code will no So longer this be the same one. so basically okay, so basically not really. Like if like although first thing, this can't be done by Git basically is a local thing, so your friend will have access of it once only if it is there on GitHub, right? And even if it is there on GitHub, your friends come and changes a code, then he will make another copy of that code. So even if it does this, you can go to Git and tell to, if you have the receipt number, right? You can tell that I want exactly like this part of the code, like this was the receipt number or this is the commit number, and I want this part of code. Then Git will return you that part of the code. You get my point? Yeah, I get it. So basically, you commit the commit ID that you get, that is like In getting. games you have in games you have checkpoints, right? Git is Yeah. the checkpoint feature for your code. So say when you start playing from a checkpoint, you save the game, it creates another checkpoint, right? So you can access both of the checkpoints whenever you want. That is what Git does for your code. Okay. And not just this, like you can even have different versions, like version 1, version 2, version 3, and you can simply revert to any version, right? Sorry, like versions of. Let's say you made like let's say people working in a VLC team, so they have the first version of the VLC, second version 2.1, 2.2, 2.3, 3.1. So all of this is managed via Git, because let's say someone wants to go to a different version, they can simply go and refer and then come back to the main version. Okay, I got it. Okay, so this is what Git is, and so let's start. Wait, okay, so all of you, before we go to like Git, we'll understand the use of this black thing that is called terminal. So I recommend all of you to open this, and so okay, so basically, uh, so let's understand what is the use of this thing that is called terminal. So okay, so if can you see my screen, like the complete screen? Uh, Yeah. Yes, sir. okay, so just give me a second. So okay, you can see like a number of icons here, right? Yeah. So let's say what I did, I went to this PC. Okay, I should not. Okay, let's say I opened any of these files, right? I can simply go in this
and click any part of the file and open it, right? So how am I doing it? This is called GUI. That is graphical user interface. Like anyone, like visually, you can just go and click on different files or folder. They will open accordingly, right? But there is another way you can interact with your machine, and that is through terminals, right? So we'll learn this thing to like okay, to basically learn about terminal. The first thing that you have to learn is that in this like terminal, it is not like folders are called directory. Like this is a like you have to memorize this thing that folders are called directory. Okay, and let's say like if I'm on a computer, like I can totally say that this is my desktop, right? uh, can you like are you along with me? If I open this, I can say that I Yes, am sir. in my I'm user profile, right? Because I can clearly see that it is in my username and then these are the folders, right? But in this black thing, how will I recognize where I am? For this, it is called, there's a command called pwd, which is basically print working directory. So if you press pwd here, what it tells, I am in c/user/hsp, right? So basically, where am I? हेलो सर, हाँ, hello. गिट सर्च के तो दो ऑप्शन आ रहा है, गिट बैश करके, गिट cmd करके, और किसे ओपन Okay, करना है? click on git bash. ओके, Click on git bash. यस Okay, so basically, it tells me where am I? I am at c/user/my username. Okay, so But I haven't opened like that full directory. So why it is showing this like okay, C users? huh. So okay, fine. So basically, this is the default of your like this like something had to meet. Like when you open your computer, what do you see? You see your desktop, right? Yeah. So in terminals, whenever you open your terminal, this is where you will land. Okay, so basically, the first thing. Like when you open, like just like when you open your GUI, what comes first? The like the this desktop comes first, right? So similarly, when you open your terminal, the first thing that you like, this is the directory that you land up to be. Is it fine? Okay, yeah. Yes. Okay. So the second command is ls. So what does ls does? Ls just list out the contents in the directory. How will I get to know that what files and folders are there in this desktop? I can simply see them, right? But I can't see anything in this black thing. So what command I have to use? I have to use ls. Can you see? There are there are number of things. Okay. So I can simply go to ls. Okay. No. Okay. Did you get this? So to get the list of contents in any directory, you have to click on like you have to type ls command. Sir, this means the files in the users HSP, your file, all the folders that are there, that will be displayed. Yes, exactly. Like any what we did first, we did pwd. So whatever files or folders are there in this hsp folder, right? Or hsp directory, that will be displayed once I type ls. Did you get my point? Yes, sir. yes Okay. sir. Okay, fine. So once we are done with ls, now like let's say visually I want to go into any of the folders. Like let's say I want to go to dex. So what I can do, I simply double clicked on it, right? Or I can right click and open. This is how we do it. But let's say in terminal, I want to go to a particular, let's say I want to go to desktop only. This desktop. Did you see here? Can you see? Yes. Yeah. Okay, so one more thing, like okay, but you can get this. Like this is the
like anything that ends with an extension is a file, and that is not that anything that the name is there, that is a folder or that is a directory. So you get my point. Like here, this three. Okay, I just explain you this with another example. So to open any folder, what we have to do? You have to use cd command. That is change directory and the name of the directory. I'll just show you an example. Let's say I want to go to desktop. Okay, so I'll do cd space d capital this thing. You get my point? Cd, that is change directory. A folder is called directory, and now what we are doing it, we are changing the directory. So we'll type cd, and since we have to tell that where we want to go, because there are so many folders, we'll have to tell the computer that we want to go to desktop. So once we click enter, and now you type pwd, where we are in user hhp/desktop. Sir, so we have to write the exact folder name, like case sensitive. Okay, it is case sensitive, but once you are like, let's say des, like if you do d and you do tab, nothing will happen. Like if you click 2 times. So basically, you can use tab. Like tab does autocomplete. Like let's say there are. Just don't follow this. Okay. So what were the folders here? If you see from D, there's desktop and there's documents and downloads, right? So if you type cd space D, the computer does not understand which of which of these you are trying to access. But once you type DES, it is sure that like DES के बाद क्या है? KTOP है. So after that, if you press tab na, it will autocomplete this. You get my point? Yes. So every time you don't have to like type the whole thing. Like let's say small s से देखो एक ही चीज है यहाँ पे. So if I type small s, okay, नहीं मतलब ठीक है. समझ रहे हो? Like you can type few letters and you can simply do tab. It will autocomplete for you. Is it fine? Instead of typing like cd and then like different codes in different line, can't we like use it in same line? Same line Like as in? like say I want to like from the user I want to go to desktop, and then I want to list items. So instead Okay, of so basically what you can do now. Okay, so we are in like right now where we are in HPP and we want to go to desktop, and then Yeah. you want to display. So we'll simply do and ls. Okay, that's So all. as you do in like C++ or any language, if you have done this, so basically you're providing two commands at one, that go to this and then list the thing. Sir, I have a doubt. Sir, in my desktop, I have a folder named new folder. Like it has 2 words in it. So when I'm searching for cd new space folder, it shows too many arguments. Okay. So how can we access names with a space? So okay, I'll just show you. Just give me a second. Okay, so basically what you have to do now, you have to do it in a like single inverted commas or double inverted commas. Okay. Because okay, I would guess single only works. एक minute. Single or double, anything works. So basically you get my point, because computer what it understand कि cd के बाद मेरा folder name आएगा, which will be a string, and then मतलब उसके बाद कुछ like and ही आ सकता है, समझ रहे हो? So if you type something after space, it recognize that it like इसको लगता है कि पहला वाला ही बस folder name है और दूसरा वाला कुछ और है, तो इसलिए वो काम नहीं करता. But if you provide in a form of string, तो उसको double inverted comma में like ये कर दो, then it will recognize it. And sir, ये दो डॉट्स का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये हम बता रहे हैं आगे. मतलब ये बस नेक्स्ट पॉइंट वही है. तो ये समझ गए कि हम लोग को किसी फोल्डर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, cd और उस फोल्डर का नाम एज इट इज. ठीक है सर, यहाँ पे जो डिफॉल्ट फोल्डर में स्टार्टिंग में जो था pwd किए थे, तो वहाँ पे यूजर पे आ गया था,
यदि हमको जो फाइल सर्च करना हो यूजर में नहीं होगा तो उसको कैसे करेंगे फिर? वो आगे हम लोग डिसाइड करते हैं। बेसिकली ये क्या है ना कि तुम इससे मतलब लेट से यो मतलब कैसे होता है तुम्हें कि तुम इसको मतलब सी ड्राइव के फाइलों को ही साथ ये करने के लिए यूज कर सकते हो जनरली। ओके सर। मेरे में सो यूजर फाइल में डेस्कटॉप नहीं है तो वो ओपन नहीं हो रहा था तो इसलिए पूछ ओके, सो इफ यू डू ls ना, वहाँ पे ये आएगा तुम्हारा यूजर नेम और समथिंग। ls करने पे क्या आ रहा है वहाँ पे? ओनली एलएस करने पे? हाँ ls करो। डेस्कटॉप नहीं आ रहा, बाकी सारा जो भी है। एलएस पे तो मतलब जो यूजर के अंदर में है ना, पहले पहले पीडब्ल्यूडी किए थे तो वहाँ पे यूजर और एचपी लिख दिया था, यूजर फिर स्लैश एचपी, बट फिर उसमें मेरे डेस्कटॉप नहीं है तो वहाँ पे शो नहीं कर रहा है, मतलब जो फाइल है ना अंदर में उसमें। सो ओके, सो इफ तुम पीडब्ल्यूडी करो वहाँ पे, पीडब्ल्यूडी करने पे क्या दिखा रहा है? सिंपली टाइप pw सी, हाँ सी यूजर फिर स्लैश एचपी। ओके, एंड इफ यू डू ls तो क्या दिखा रहा है? ls करने पे डेस्कटॉप नहीं दिखा रहा, राइट? हाँ, मीन्स में उसके अंदर में शायद फाइल नहीं है मेरा, मतलब उसको ओपन किए यूजर को ना जाके फाइल में, और फिर एचपी में जाके तो वहाँ पे मतलब डेस्कटॉप का फाइल नहीं है उसमें, उसके अंदर जितने फाइल है वो दिखा रहे हैं हमको वहाँ पे। अच्छा हाँ, तो वो बेसिकली क्या होगा ना कि तुम्हारा किसी और मतलब तुम्हारा डिफॉल्ट यूजर कोई और होगा। लाइक हो सकता है तुम्हारे कंप्यूटर में मल्टीपल यूजर्स होंगे और उसका कुछ ये होगा, और तुम्हारा जो नाम डेस्कटॉप कुछ और होगा, सॉरी कुछ और नाम होगा। हाँ कुछ और नाम होगा, फिर तुम्हारा यूजर कुछ और होगा, तुमको उस परमिशन नहीं दिया होगा मे बी, लाइक तुम्हारा एडमिन एक्सेस मे बी नहीं होगा। बट यू गेट माई पॉइंट कि वहाँ पे डेस्कटॉप का कोई यूज ही नहीं है। हम लोग बस ये बता रहे हैं कि डायरेक्टरी चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है। हाँ, डायरेक्टरी चेंज करने के लिए हमें ये एज इट इज नाम लिखना पड़ता है, राइट? ये हो गया। बट व्हाट वी वांट टू गो बैक, तो बैक जाने के लिए हमें cd स्पेस 2 डॉट देने पड़ते हैं। तो तुम लोग खुद ट्राई करो कि cd डेस्कटॉप पे जाओ और उसके बाद pwd करो, तुम लोग दिखाएगा डेस्कटॉप पे हो, बट फिर cd डॉट डॉट कर दो और फिर pwd करो, तुम्हें दिखाएगा कि तुम वापस आ गए हो जहाँ से स्टार्ट किए थे। फाइन? Yeah. And not just for this command, dot in general means to go back, like बहुत सारे अगर तुम तुम बहुत जगह तुम लोग ना इसको बेसिकली, हम लोग को आदत हो जाता है ये सब यूज करने का, तुम बहुत सारी चीजों पर देखोगे ना। नहीं, एक मिनट दिखाता हूँ। अरे नहीं, हम कुछ दिखाने का ट्राई कर रहे थे। बेसिकली लाइक जो बैक होता है ना, तो इसको तुम देखोगे तो बहुत सारी चीजों में इसमें भी ग्राफिकली दिखाया रहता है डॉट डॉट। तो मतलब तुम आगे भी कुछ चीज मतलब कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड काम करोगे ना, तो डॉट डॉट जनरली मीन्स की मतलब बैक जाना। तो ये चीज मतलब ये याद ही रख लो कि डॉट डॉट मतलब बैक, एंड बेसिकली cd तो डायरेक्टरी चेंज करने बोल रहा है कि एक डायरेक्टरी बैक जाओ। तो ये बात समझ में आ गई सबको मतलब? और ये सब हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, मतलब इसका टेंशन मत लो, ये पूरी हम लोग शेयर कर देंगे बाद में। और ठीक है, तो फिर नेक्स्ट कमांड क्या है कि लेट से हमें कोई फोल्डर क्रिएट करना है। तो फोल्डर क्रिएट कैसे होगा? तुम लोग वापस डेस्कटॉप पे जाते हैं और ट्राई करते हैं फोल्डर क्रिएट करने का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम टाइप करेंगे MKDIR और फोल्डर का नेम लेट से क्लाइड। ओके, हम लोग कुछ क्रिएट करते हैं गिट वर्कशॉप, ठीक है, गिट हाइफन वर्कशॉप। और ने मेक श्योर करना है कि तुम स्पेस ना दो। अगर स्पेस देना है तो तुम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दो, बट लेट्स ट्राई सिंपल, हम लोग स्पेस ये से करें गिट और हाइफन वर्कशॉप। तो इसे देखना, अगर तुम अब ls करो तो एक और नाम दिखाएगा, दैट विल बी योर गिट वर्कशॉप। समझ में आ गया? तो MKDI दैट इज मेक अ न्यू डायरेक्टरी से M यहाँ से K एंड DIR। तो इससे क्या होता है कि नया फोल्डर तुम बना सकते हो, नया डायरेक्टरी बना सकते हो बेसिकली। हाँ, ये बात समझ में आ गई सबको? Yes. हम लोग उसी के अंदर जाते हैं
cd कमांड किया, ये समझ में आया? उसके हम लोग अंदर आ गए। इफ आई डू pwd, हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग के डेस्कटॉप और गिट वर्कशॉप के अंदर, राइट। बट लेट से हमें एक नया फाइल क्रिएट करना है, फोल्डर नहीं फाइल। तो हम क्या करेंगे, टच वन डॉट विद एक्सटेंशन 1.txt, मतलब क्या है, टेक्स्ट फाइल है। ये बात समझ रहे हो? हम्म। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अब ls करो तो क्या दिखाएगा यहाँ पे, 1.txt, पहले कुछ नहीं था, ठीक है। एंड इफ वी वांट टू डिलीट इट, हम लोग क्या करेंगे, rm 1.txt। अब ls करेंगे, कुछ नहीं है। तो समझ में आया यहाँ तक? हाँ, ओके ओके। सो बेसिकली इतना कमांड था। तो ये था मतलब बेसिकली टर्मिनल में। अगर तुम लोग कोई भी लिनक्स बेस्ड सिस्टम यूज करते हो तो इसको काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते होगे। बट गिट मतलब ये भी यूज पड़ता है काफी। अगर तुम सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हो तो लोग जनरली माउस नहीं यूज करते, दे डू थ्रू ऑल थ्रू कमांड्स, ठीक है। तो हम लोग अब इसका गिट में यूज करते हैं, ठीक है। तो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मेकिंग एक क्लाइट आप यूज किए होगे, तो हम लोग उसी का क्लोन बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। लाइक अगर तुम्हें क्लाइट का क्लोन बनाना होगा तो ऑल्दो हम लोग पूरी चीजें मतलब हम लोग कोड नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज उतना टाइम नहीं है। विल सिंपली ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। सर हम लोग क्या, फाइल्स डिलीट करने हाँ सर एक डाउट था, फाइल्स डिलीट हाँ करने के लिए भी rm स्पेस फाइल नेम देना होगा? अच्छा ठीक है ना, फोल्डर ओके डिलीट करने के लिए कुछ और होता है। लाइक अगर फोल्डर डिलीट करना है होता है, बट फाइल rm स्पेस और फाइल नेम। ओके सर। तो विल स्टार्ट विथ गिट एंड लाइक गिट को कैसे यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमें लेट्स से एक क्लाइंट का क्लोन बनाना है, बट हम पूरे कोड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि ठीक है, तो हम एक पहले क्या करेंगे, फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। फोल्डर कैसे बनता है, mkdir क्लाइट क्लोन, ठीक है। ये फोल्डर बनाया, फिर हम क्या करेंगे, फोल्डर के अंदर जाएंगे, चले गए। अब हमें क्या बनाना था, लेट से हमें पहला चीज जो कोड करना था वो था ऑथ फीचर। ऑथ फीचर, राइट। तो हम क्या करेंगे, टच टच से क्या होता है, फाइल बनता है auth.txt। हम लोग txt फाइल से ही कोड करते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली हम लोग, तुम्हें पता है, हम कोड नहीं कर रहे हैं, हम बस एक मतलब टेक्स्ट फाइल के थ्रू, मतलब टेक्स्ट फाइल में लिख रहे हैं कि ये है वो है। और हम लोग का मेन एम क्या है, गिट और गिटहब सीखना है, राइट। तो हम लोग बस txt फाइल के थ्रू ही जाएंगे और उसके थ्रू एक बनाएंगे, ट्राई करेंगे क्लोन बनाने का। तो ये करने के बाद, ये कर दिया सब लोगों ने, हाँ सर। ठीक है। तो तो इफ यू सी, एक मिनट, तो यहाँ पे एक फोल्डर बन चुका है। अगर तुम देखोगे अपने ये होम स्क्रीन पे, तो फोल्डर बन चुका है, राइट। तो अब इस पे तुम लोग पास कौन कौन सा लाइक एडिटर कुछ इंस्टॉल्ड है तो उससे खोल लो। अगर कुछ नहीं तो नोटपैड होगा ही, वैसे नोटपैड से ही खोल लेते हैं, ठीक है। तुमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे तुम फोल्डर क्रिएट किए वहां पे खोल के उसको नोटपैड से खोल देना। ये हो गया सबका। Yes. सर नहीं हुआ सर, प्लीज एक बार आप बताएं ना। हाँ, तो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक क्या किया, हम लोगों ने फोल्डर बनाया एक क्लाइट क्लोन करके, ठीक है। और उसके अंदर एक फाइल क्रिएट किया auth.txt, ठीक है। तो ये मतलब एरर दे रहा है सर। एरर कैसा एरर, मतलब क्या लिख रहा है? मतलब नो डायरेक्टरी फाउंड। अच्छा, तो तुम cd पहले ना mkdir ये करोगे तभी cd काम करेगा। शायद बैक जाना पड़ेगा उसको सर। एक बार pwd कर दो, या फिर अगर तुम प्रॉब्लम हो तो स्क्रीन शेयर कर दो, हम लोग गाइड कर देंगे। सर एक सेकंड वो रहा कर रहे हम्म, हैं। सीडी क्लाइंट क्लोन वो अब वर्क कर गया, उसके बाद क्या करना है? ओके। तो वहां पे हम लोग एक फोल्डर
एक फाइल क्रिएट करेंगे auth.txt, touch auth.txt। यस हो गया। अब हम क्या करेंगे कि तुम क्या करो कि बट वो फाइल आया नहीं इससे कहीं पे, मतलब ओके, तो उसका टेंशन मत लो, तुम एक काम करो, यहाँ तक सबने कर लिया? यस। क्या? ओके, तो हम क्या करेंगे, सिंपली टाइप करेंगे नोट पैड auth.txt। बेसिकली ये क्या करेगा, नोटपैड में हमारे auth.txt चीज को खोल देगा। ये हो गया। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, जिसके पास कोई अगर कोई VS कोड यूज कर रहा है तो नोटपैड के बदले कोड लिख के रखना, CODE, वो हाँ। VS कोड खोल लेगा। फिर सबलाइम टेक्स्ट चूज करो तो तो VS कोड SUPL के लिए क्या बोले, उसके लिए नोटपैड की जगह क्या लिखना होगा? कोड, CODE। कोड, ओके। एंड किसी के पास सबलाइम टेक्स्ट है तो वो SUBL लिख सकता है। हो गया यहाँ पे सबका? हाँ सर, खुल गया। तो यस यस। तो वंस वी आर डन विद इट, यहाँ पे तुम कुछ भी लिख दो, लाइक दिस इज द ऑथ फीचर ऑफ क्लाइड, ठीक है। ये हम लोग बेसिकली टेक्स्ट फाइल, समझ में आना कि हम लोग कुछ कोड नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस टेक्स्ट फाइल यूज करेंगे, ठीक है। क्या कुछ लिख, दिस इज द ऑथ फीचर ऑफ क्लाइड, ये करके हम इसे सेव कर देंगे Ctrl+S से या फिर फाइल सेव से, ठीक है। ये कर लिया सब लोगों ने? हाँ। ओके, सो वंस यू आर डन विद इट, इसे हम सेव करके कट कर देंगे, ठीक है। तो अभी तुमने क्या किया कि तुमने ऑथ फीचर को कोड कर दिया, समझ रहे हो? यस। यस सर। ठीक है। अब तुम्हें मान लो ये करना है, ठीक है। अब इसको मान लो जैसे तुम लोग गिट को जाके, हम लोग ना गिट को जाके हम लोग को जमा करते हैं कुछ, और फिर वो गिट एक रिसिप्ट देता है। तो हम चाहते हैं कि ये चीज हमारी काम कर रही है, और हम चाहते हैं कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, कि हम आगे जाके कुछ, मतलब हमको ये चाहिए तो वापस मिल जाए, राइट। यस सर। तो इसके लिए बेसिकली हमें क्या करना होगा, हमें पहले बताना पड़ेगा गिट को कि अच्छा तुम गिट तो हमने इंस्टॉल कर लिया, अब गिट सब कुछ को ट्रैक तो नहीं कर सकता ना, उसको बताना पड़ेगा तुमको इस फोल्डर को ट्रैक करना है, समझ रहे हो? तो यस सर। उसके लिए हमें बोलना पड़ेगा कि गिट इनिशियलाइज कर दो, मतलब मतलब बेसिकली गिट को बोल रहे हो कि इस फोल्डर को इनिशियलाइज कर दो, तो क्या करोगे, गिट इनिट लिखोगे, ठीक है। फिर तुम्हें ये मैसेज आएगा, इफ यू टाइप गिट इनिट, ये मैसेज आएगा तुम लोगों को। ये हो गया। Yes. एक बार क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली तुम गिट को बोल दिया कि हाँ मतलब ये चीज को ट्रैक करना है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे कि तुम ना, अब तुम्हें अब तुम गिट को बता दो कि हाँ ये चीज को ट्रैक करना है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है बेसिकली कि अब तुम्हें बोलना है कि अच्छा मतलब अब क्या करो कि जो auth.txt फाइल है उसको सेव करना है, ठीक है। मतलब गिट के पास रखना है उसको, कि तुम्हें एक वापस कॉपी मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, गिट एड auth.txt कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि अब हमने क्या किया कि इसको बोल दिया कि अच्छा ठीक है, ये auth.txt को हम लोगों ने एक तरह से पिक कर लिया। अब इसको हम लोग जा रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं उसको देने के लिए, क्या बोलते हैं, गिट के पास। हम फिर क्या करेंगे, बोलेंगे गिट कमिट -m दिस इज, अच्छा हम बता रहे हैं क्या लिख रहे हैं हम। और तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, गिट को कमिट करना, मतलब समझ रहे हो, लिटरल मीनिंग है कमिट जाकर मतलब उसको जाके दे देना, मतलब ये करना। और -m मतलब हम एक मैसेज डालना चाहते हैं इसके साथ। मैसेज क्या है, क्योंकि हम चाहते हैं मैसेज एक लंबा मतलब ये हो, नॉट जस्ट अ सिंगल वर्ड, इसलिए हम ये डबल इनवर्टेड कॉमा यूज, सिंगल इनवर्टेड कॉमा यूज किए हैं। और हम मैसेज क्या बोल रहे हैं कि दिस इज द ऑथ फीचर, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बाद में कभी आए तो मैसेज से भी इसको खोज सकें, कि हम बोलेंगे मेरा मैसेज ये था।
तो हम क्या बोले, गिट को पहले हम बेसिकली गिट को बताया कि इस चीज को मतलब इस फोल्डर को ट्रैक करना है। फिर हम क्या किए, auth.txt को उठाए और उसको जाके उठाने के लिए ऐड किए, मतलब अपने कार्ट में मतलब ऐड किए। और फिर क्या किए कि गिट कमिट -m मतलब एक मैसेज के साथ, मैसेज क्या है कि दिस इज द auth फीचर, और उसके बाद एंटर कर देंगे। देखो तुम लोग को एक सेकंड कन्फिग करना पड़ता है। ओके, ये टेंशन मतलब ये हो जाएगा, मतलब नॉट अ बिग डील। तुम्हें ऐसा कुछ एरर दिखा होगा, दिखा क्या? यस सर। Yes. हाँ, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे बस क्या करो ना, ये टाइप करोगे git config -- जो लिखा है वो एज इट इज ये कर दो, ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दो। जिसे तुम लोग गिटहब पे साइन इन किए थे वो ईमेल एड्रेस। हाँ ओके हाँ, सर। और ये एंटर कर दो। सर तो जब हम लोग ऐड कमांड डाल रहे हैं उस फाइल के साथ तो वो स्टेज हो रहा है चेंजेस हाँ या मतलब अपलोड हो जा बेसिकली रहा है रिपोजिटरी? नहीं नहीं, अपलोड नहीं हो रहा है। बेसिकली इफ यू सी, तो बेसिकली वर्किंग डायरेक्टरी है तुम्हारा, ठीक है। तो गिट ऐड करने पे वो जाता है कहाँ, वो जाता है तुम्हारे स्टेजिंग एरिया में, ठीक है। और वंस यू आर डन विद स्टेजिंग एरिया, अब तुम्हें मतलब उसके बाद तुम इसको कमिट करते हो। इफ यू अंडरस्टैंड ऐसे ना, तो बेसिकली अगर तुम्हारा वर्किंग डायरेक्टरी एक सुपर मॉल है, और तो स्टेजिंग एरिया क्या है, तुम्हारा कार्ट है, तुम बोलते अच्छा इसको भी ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दो। लाइक लेट्स से तुम एक ऑथ के साथ तुम अगर गलती से साथ में कोड करना स्टार्ट कर दिए नोट्स फीचर, ठीक है, बट वो तुम्हारा कंप्लीट नहीं है, तो उसको देने का कोई सेंस बनता है? नहीं बनता है। तो तुम उसको ऐड क्यों करोगे? तो इसी तरह लाइक लेट्स से तुम शॉपिंग कार्ट मतलब तुम जाते हो मॉल में, तुम सब कुछ नहीं लेते हो, जिसका तुम्हें जरूरत है वही लेते हो। तो वैसे ही जब तुम गिट को देने जाते हो, तुम सब कुछ नहीं लेते हो। लाइक लेट्स से जिस चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत है, लाइक फॉर एग्जांपल कि तुम्हारा एक फीचर अनकम्प्लीट है, एक फीचर कंप्लीट है, जो कंप्लीट है उसे ही लोगे ना। तो जो कंप्लीट वाले को फाइल को लेते हो और उस फाइल को ले जाके स्टेज मतलब इसको स्टेजिंग एरिया में लेते हो और फिर जाके उसे गिट कमिट करते हो, राइट। यस। तो अभी तक ये कर लिए होगे तुम लोग, मतलब वो ये चीज़ हो कमांड गई करते क्या? वक्त यूजर मेल के बाद गैप है क्या? क्या क्या? हाँ, यूजर वो तुम लोग में दिखा रहा होगा, लाइक एक मिनट वो मेरे को। सर ईमेल ये तब इनपुट करना जब एरर शो कर रहा होगा तो? आई गेस तुम पहली बार अगर मतलब तुम पहले यूज किए हो गिट तो नहीं शो करेगा, बट इन केस पहली बार कर रहे हो तो मतलब वो शो करेगा। सर मेरे में शो नहीं कर रहा था इसलिए मुझे। अच्छा, पीछे तुम पहले यूज किए हो क्या? ये सर एक बार यूज किया था मैंने। हाँ, तो फिर वो नहीं दिखाएगा मतलब error। तो सेम वो जो दिए हैं ऊपर, हाँ सॉरी, मतलब उसको इन्वर्टेड कॉमा देना था क्या उसको ईमेल एक आईडी से मिनट पहले? एक मिनट, हर्ष वो ब्लॉग का लिंक शेयर कर देते। हाँ वही कर रहा हूँ। कौन सा बात बोल रहे हो, कौन सा बोल रहे हो? ईमेल यूजर डॉट लिखा हुआ है ना, यूजर हाँ डॉट के बाद ईमेल एड्रेस जो है अपना डाल देना है, या फिर कुछ मतलब यूजर वो डॉट सेमी ईमेल के बाद तुम्हारा ईमेल एड्रेस डालना है। मतलब हम लोग एक यूजर ब्लॉग शेयर कर रहे हैं, एक मिनट तुम उस ब्लॉग से मतलब उसमें ब्लॉग में हमने समझाया हुआ है कैसे करना है। हाँ, हर्ष ब्लॉग का लिंक शेयर कर दे वो चैट में। सर तो ये ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल से हम लोग साइन इन कर रहे हैं। हाँ बेसिकली गिट मतलब बेसिकली इससे कोई भी प्रोडक्ट यूज करने के पहले तुम्हें लॉगिन करना पड़ता है ना, फिर साइन अप करना पड़ता है। तो ऐसे ही गिट चाहता है कि उसे पता हो कि मतलब कौन क्या करे, तो उसी के लिए बस लोकली साइन इन करने बोलता है। आई गेस मैं चैट को नहीं मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया है और लोग। हाँ आकाश वो चैट, तुम लोग अगर चैट सेक्शन देखोगे तो यहाँ पे एक ये फाइल दिख रही है क्या? ये फाइल खोलोगे
तो इसमें बताया हुआ है कि हाँ, तो बेसिकली तुम्हें ना पहले ये कमांड डालना है विथ योर, हम दिखा दे रहे हैं करके। हाँ, तो पहले यूजर नेम डाल के और फिर नाम डाल देंगे। हाँ, तो बेसिकली ये दो चीज़ करनी है बस, तुम्हें अपना यूजर नेम और अपना ये डालना है, ठीक है, ईमेल आईडी। यूजर नेम भी गिट वाला सर? हाँ, गिट वाला डाल दो मतलब। ये होने के बाद मेरे को मतलब बताओ, मतलब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस सर, हो गया। हो गया ना, सबका हो गया, मतलब बस सिंपल सा दो कमांड डालना है, गिट कन्फिग मतलब यूजर नेम और फिर ईमेल अपना। हो रहा है सर, एक सेकंड। प्लीज हाँ, यस सर, हो गया। ठीक है ना। तो बेसिकली ये करने के बाद अगर तुम अब टाइप करोगे, हम लोग क्या कर रहे थे, गिट कमिट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम उसको सबमिट करने जा रहे हैं क्या, एक मैसेज के साथ कि दिस इज ऑथ फीचर, ठीक है। अब एंटर करोगे तो अब देखो तुम्हें एक ये मिला, एक ये कोड मिला, राइट, और इसमें क्या बोला कि एक फाइल चेंज किया गया, मतलब दैट इज, और एक लाइन क्या है, इंसर्शन है, मतलब एक चीज को ऐड किया गया है auth.txt में, ठीक है। हम अगर टाइप करेंगे गिट, देखो तुम्हें यही चीज का बात कर रहे थे हम कि ये क्या बोल रहा है कि ओए राजू, जिसका ईमेल आईडी ये है, उसने इस टाइम को एक कमिट किया, मतलब एक सबमिशन किया जिसका कोड नंबर ये है और जिसका मैसेज ये है, समझ रहे हो। तो इफ एनीवन लाइक कोई भी अगर मतलब अगर तुम कभी भी चाहते हो इस यहाँ तक इस फीचर तक वापस आने का, तुम आराम से इस कोड के थ्रू कर सकते हो, समझ रहे हो। ये हुआ सबका। गिट कमिट -m मैसेज के बाद गिट लॉग टाइप करोगे तो तुम्हें ये दिखाएगा। इज इट फाइन? यस सर। यस। ओके ओके ग्रेट। सो तो ये समझ में आ गया कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग पहले वर्किंग डायरेक्टरी से गिट ऐड करते हैं, फिर गिट कमिट करते हैं, और उससे क्या होता है, मतलब हमारा बेसिकली वो कमिट हो जाता है। मतलब हम लोग ने ये कर दिया, हम आराम से काम कर सकते हैं। हम इतना तो है कि यहाँ तक हमारा कोड सेफ हो गया है, राइट। I have one thing to add. Next time अगर कुछ फीचर ऐड करेगा ना तो लाइक गिट स्टेटस भी एक बार बता देना लाइक। हाँ हाँ please। तो ये बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, नया फीचर ऐड करेंगे, क्या, नोट्स वाला फीचर ऐड करते हैं, ठीक है। तो खोला डाला कि दिस इज नोट फीचर, सेव, इसको सेव कर दो और फिर इसको क्लोज कर दो। समझे क्या किया, सेम चीज किया, बस उसको खोल के कोई भी एडिटर से और टाइप कर दो कुछ भी, मतलब फर्क नहीं पड़ता। तो अब हमारा क्या है, ऑथ फीचर जो हम लोगों ने सबमिट कर रखा है, अब हम क्या नया नोट फीचर ऐड किए, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि कौन सा चीज़ है जो गिट के पास ऑलरेडी है और कौन सा चीज़ उसके पास नहीं है,
ठीक है, तो हम उसको क्या करना है, हमको बेसिकली स्टेटस चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट स्टेटस करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, बेसिकली हम लोग के पास एक अनट्रैक्ड फाइल है, वो क्या है, notes.txt। इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहा कि इसको ये ट्रैक कर रहा है, हम लोगों ने पहले ही इसको बोल रखा है कि तुम जो है इसको auth.txt को ट्रैक करो, उसमें हमने कुछ चेंजेस भी नहीं करे, राइट। सो इफ यू सी, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि बस एक फाइल है जिसको हम लोगों ने स्टेज नहीं किया, हम लोगों ने कभी, हमारे कार्ट में नहीं है वो, ठीक है। तो हम अगेन क्या करेंगे इसे, git add notes.txt git commit -m this is notes feature। और फिर अब देखो, अब एक और हम लोगों ने कमिट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम गिट लॉग दिखाएंगे। तो यहाँ दो चीज दिखा रहा है, देखो कि ओ राजू ने क्या किया, दो कमिट किए। पहले तो एक किया कितने, 1959 पे, और एक 2:02 मतलब 20:02 पे, राइट। पहला क्या था, दिस इज अ नोट्स फीचर एंड दिस इज अ ऑथ फीचर, ठीक है। तो अब हम कभी भी चाहें वापस तो नोट्स पे जा सकते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे क्या होता है, बेसिकली तुम एक एक मतलब उसको बताया था कि हाँ यहाँ तक तुम सेफ रखो, यहाँ तक तुम सेफ रखो। गाइस गेट माय पॉइंट, सबको समझ में आया ये पार्ट। यस सर। ओके ग्रेट। सो मतलब ये था, मतलब गेट का यूज करना। आगे तुम अगर मतलब, क्योंकि कंसिडरिंग बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट हाँ तुम ये कर सकते हो, आगे तुम देख सकते हो नेट पे कि अच्छा हम वापस कैसे जाते हैं, मतलब गेट के बारे में हम लोग सारा रिसोर्सेज शेयर कर देंगे। तो मतलब तो ये बेसिकली सिंपल, अगर तुम खुद से ही कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो, फिर कोई भी काम कर रहे हो सॉफ्टवेयर रिलेटेड, तुम क्या करोगे कि तुम जैसे ही कुछ पहले कुछ फीचर ऐड कर दिए, उसके बाद तुम उसको गिट कमिट कर दोगे सो दैट कि वो सेफ रहे। एंड जस्ट इन केस इफ यू वांट टू गो बैक टू दैट, तुम वहां तक जा सकते हो, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो हम लोग, ये तो समझ में आ गया सबको। अब किसको कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो, हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले हैं। यस सर, अभी हम सर गिटहब अपना लॉगिन किए ब्राउजर में, तो वहाँ पे कुछ रिपोजिटरी नहीं क्रिएट हुआ है। हाँ वहाँ पे अभी नहीं हुआ होगा, वो हम लोग उसका हाँ बात सर, करेंगे। मेरा भी नहीं हुआ अभी देख। वो नहीं होगा, हम लोग ने गिट अभी बस हम लोग देखो, गिट और गिटहब कंप्लीटली अलग चीज है, ठीक है। बेसिकली गिट क्या है, तुम्हारा लोकली वर्जन कंट्रोल। गिटहब क्या है, उसका क्लाउड है। लाइक लेट्स से अगर तुम एक जैसे गूगल फोटोज है, ठीक है। तुम कोई फोटो क्लिक करते हो तो तुम्हारा गूगल फोटो में थोड़ी शो होगा, जब तक तुम उसको एक्सेस ना दो कि तुम इसको ट्रैक करो, फिर तुम इसको अपलोड करो, तब तक तुम्हारा गूगल फोटोज में शो नहीं करेगा, मतलब जो कंप्यूटर से लॉगिन होगा, समझ रहे हो। तो गिट एंड गिटहब आर कंप्लीटली डिफरेंट। तो गिटहब क्या है, गिट वाली चीजों को ही वो मतलब क्लाउड पे होता है, मतलब इंटरनेट पे होता है, और गिट इज लाइक लोकल में होता है, समझ रहे हो। तो हम लोग वो बताएंगे गिटहब पे कैसे डालना है और गिटहब से कैसे काम करना है, ये बस गिट का था, ठीक है। गिट बिना इंटरनेट के चला सकते हो, लेकिन गिटहब इंटरनेट हाँ बिना नहीं चला सकते। हाँ, गिट तुम बिना इंटरनेट के चला सकते हो और गिटहब नहीं चला सकते। हाँ, तो ये था बेसिकली उसके बारे में, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब कमिट के बारे में, और बेसिकली कैसे गिट काम करता है। अब हम क्या करते हैं, तो अब देखो गिट में बस ये नहीं है, गिट में देयर आर सेवरल मेनी मोर थिंग्स, कि तुम जैसे अभी हम लोग बताया, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ब्रांचिंग, ठीक है। एंड नॉट जस्ट दिस, देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट। इफ यू गो टू गिट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, तुम यहाँ से बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, ठीक है। एक मिनट, हाँ तुम बताते हैं कि तुम्हें किसी को और पढ़ना है, तो इसे देखो, देर आर, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन किया, हम लोगों ने ऐड पढ़ा, स्टेटस पढ़ा, कमिट पढ़ा, ठीक है, और आरएम पढ़ा, ठीक है। आरएम तो सिंपल कमांड था। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऐड पढ़ा है, स्टेटस पढ़ा है, कमिट पढ़ा है, राइट। बट देर आर सो मेनी थिंग, देखो डिफ है, नोट्स है, रीसेट है, रिस्टोर है, ठीक है। एंड देर आर मेनी मोर, मतलब ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स लाइक ब्रांचिंग है, और फिर इंस्पेक्शन है, और तुम बहुत लाइक तुम्हें लाइक
स्काई इज द लिमिट, इसमें तुम इतनी चीजें कर सकते हो, ठीक है। बट हमें सबकी जरूरत नहीं पड़ती, यू हार्डली यूज ऑल ऑफ दिस। तुम जनरली गिट यूज करोगे, स्टेटस यूज करोगे, कमिट यूज करोगे और मतलब ऐड यूज करोगे, ठीक है। तुम्हें कोई चीज अगर कभी भी सीखनी हो तो इसकी हम लोग लिंक डाल देंगे, तुम सिंपली यहाँ से जाके समझ सकते हो। अच्छा जैसे कमिट हम लोग सीखा क्या है, गिट क्या है, कमिट इसमें इतनी मतलब ठीक है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत नहीं होगी। बट फिर से ओके, मतलब यू गेट माई पॉइंट, तुम आराम से ये सब चीजें देख के और सीख सकते हो। मतलब इनफैक्ट अगर तुम्हें पढ़ने आता है डॉक्यूमेंटेशन तो इसका भी सेंस लगा सकते हो कि लाइक ये गेट कमिट है, फिर आगे से एम फॉर मैसेज, राइट, यहाँ मैसेज दिया हुआ है और उसके बाद तुम्हें अपना मैसेज लिखना है। तो इसमें मैसेज नहीं, तुम और भी बहुत चीजें कर सकते थे जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बस दिया हुआ है फॉर प्रोज, हमें बस क्या अपने काम की चीजों से मतलब रखना है। तो वैसे ही तुम और भी बहुत चीजें मतलब देख सकते हो। तो वैसे ही ब्रांचिंग एज अ कॉन्सेप्ट, सिंस वी आर रनिंग अ बिट आउट ऑफ टाइम, हम इस पे नहीं, हम गिटहब पे जंप करते हैं। तुम्हें हम लोग उस वो मतलब तुम उससे मतलब नोट से सीख सकते हो। तो लेट्स अंडरस्टैंड गिटहब क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोगों ने लोकली काम कर लिया, राइट। तो हम लोगों ने लेट्स अभी हम लोगों ने क्या किया है, इफ वी गो टू आवर फोल्डर, हम ls करें तो हम लोगों ने क्या, हमारे पास ऑथेंटिकेशन फीचर है और नोट्स फीचर है, ठीक है। बट अगर तुम्हें लॉन्च करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए अभी क्लाइट में, तो तुम्हें चाहिए स्किल मॉड्यूल चाहिए, ब्लॉग्स चाहिए, ठीक है, ये दो चीजें अभी चाहिए। बट ये पार्ट तुम्हारा फ्रेंड करने वाला है, ठीक है। तो तुमने अपना पार्ट तो कर दिया, अब तुम क्या करोगे कि अब तुम्हारे फ्रेंड को करने के लिए इस पार्ट की जरूरत है, तो तुम क्या करोगे, उसको गिटहब पे डाल दोगे, ठीक है। तो गिटहब पे डालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग खोलेंगे गिटहब, सॉरी github.com, खोल लिए सबको, ये तुम सब लोग लॉग इन कर लिया होगा। हाँ यस तुम, सर। हाँ राइट। उसके बाद हम एक रेपोजिटरी बनाएंगे न्यू, ठीक है, उसका नाम रख सकते हैं वर्कशॉप, फिर जो भी तुम्हें नाम रखना है, ठीक है। इफ यू वांट टू गिव डिस्क्रिप्शन, ये सब काफी ऑप्शनल चीजें हैं। और फिर तुम क्या करोगे, क्रिएट रेपोजिटरी कर दोगे। समझ में आया, github.com पे जाना है एंड उस पे न्यू पे क्लिक करना है एंड देन कोई भी एक नाम दैट यू फील लाइक, जो तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम है। फॉर एग्जाम्पल आई विल सिंपली नेम इट वर्कशॉप 2, और फिर इस पे जाके और क्रिएट रेपोजिटरी कर देंगे। हाँ ये हो गया सबका, या ओके ठीक है। तो अब हम लोग ने एक बना लिया है और मतलब गिटहब पे भी रेपोजिटरी, बट विल हैव टू टेल हमारे कंप्यूटर को कि अच्छा द रेपोजिटरी दैट यू आर ट्राइंग टू एक्सेस लाइज इन दिस एड्रेस, दैट इज github.com/my username/name ऑफ द रेपोजिटरी, राइट। तो उसे पता नहीं चलेगा ना, उसको बताना है कि तुम कहाँ पे कोड, लाइक देयर आर सो मेनी रेपोजिटरीज इन दिस वर्ल्ड ऑन गिटहब, राइट, बट यू हैव टू टेल द स्पेसिफिक वन। तो यहाँ पे लिखा है ना कि हाउ टू लाइक सेटअप दिस, तो इसमें लिखा है ना इफ यू हैव एन एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी, तो हमारे पास एक एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी है, राइट। ऑल ऑफ यू एग्री ऑन दिस, हेलो। यस सर। हाँ, तो हमारे पास एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी है, तो हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, ये कमांड देना है git remote add origin, इस वाले को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। एंड वंस यू कॉपी दिस, हम तुम इसे राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आई एक्सप्लेन यू दिस, ये क्या कर रहा है, गेट रिमोट, मतलब जो चीजें रिमोटली मतलब क्लाउड पे उसको रिमोट बोलते हैं, रिमोट ऐड करने बोल रहा है। और ओरिजिन इस चीज का नाम है, मतलब इस लिंक का, हमेशा तुम ये लिंक टाइप नहीं कर सकते ना, जब तुम्हें भेजना है तुम इस लिंक का नाम देते हो ओरिजिन और फिर ये लिंक डालते हो। लिंक क्या है तुम्हारा, जो बस यहाँ से तुमने उठाया उसी का है। ये समझ में आया, गेट रिमोट यहाँ पे दिया हुआ है, तुम्हें किसी को नहीं आया तो सिंपली कॉपी करके फिर एंटर कर सकते हो। वंस यू आर डन विद इट, तुम्हें एज इट इज जहाँ पे ये लिख रहा है, तो इसे ये दोनों कमांड भी कॉपी करने हैं और सॉरी ये वाला कमांड भी कॉपी करना है और तुम्हें इसे पेस्ट कर देना है
ओके सॉरी, मतलब तुम लोग कभी कभी पेश करो तो वो काम नहीं करेगा ड्यू टू अ रीजन। मतलब ये कर देना है और फिर क्या करना है, मतलब तुमने एक मतलब एक ब्रांच क्रिएट किया विच बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ना लाइक अब कोड को मतलब हमने ये बता दिया कि अच्छा यहाँ पे तुमको पुश करना, मतलब यहाँ पे तुम्हें कोड डालना है गिटहब पे। अब हम क्या करेंगे ना, हम करेंगे गिट पुश, ठीक है। यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं कि गिट को बोल रहे हैं कि तुम पुश करो, ठीक है, वाया यूजर थ्रू कहाँ पे, ऑरिजिन पे, जहाँ पे तुम देखो अब ऑरिजिन हम लोग यूज किए थे ना। तो बेसिकली इस लिंक को हम लोग अब क्या बोलते हैं, कभी भी इस लिंक को यूज करना होगा तो हम उस लिंक की जगह क्या बोलेंगे, ऑरिजिन बोलेंगे, ठीक है। और हमारा मतलब ये बेसिकली ये ब्रांच है, ब्रांच क्या है, मतलब बेसिकली मेन ही होता है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मेन करा। हम इसको एंटर करेंगे, सॉरी, हमसे हमारा यूजर नेम पूछ मतलब साइन इन करने बोलेगा। सर ये मेन ब्रांच का नाम है, हाँ मेन ब्रांच का नाम है। हम ऐसा कुछ ब्रांचिंग भी थोड़ा नाम दे सकते हैं। नहीं, जनरली मतलब तुम्हारा जो पहला ब्रांच होता है मेन का, उसको मेन ही रखना पड़ता है, दिस इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर मतलब। और एक चीज ऐड करना चाहेंगे, ओरिजिन नाम मतलब सब लोग मतलब एक कॉमन प्रैक्टिस है ओरिजिन ही रखना की कोशिश करना, क्योंकि वो कॉमन प्रैक्टिस है। लाइक और लोग जो तुम्हारे रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करने आएंगे तो वो ओरिजिन ही यूज करना चाहिए, लोग को समझ आएगा। बेसिकली इसको वेरिएबल में डाल दिया ओरिजिन में। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी डाल दो, बिकॉज दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ओवर द वर्ल्ड। कोई यूज कर रहा है तो उसका नाम ओरिजिन ही रखता है, और तुम्हारा जो पहला ब्रांच है उसका नाम मेन ही रखता है। पहले मास्टर हुआ करता था बट अभी मेन हो गया है। वंस यू डू क्या हम लोगों ने किया, गेट पुश माइनस यू ओरिजिन मेन, तो तुम्हें एक ऐसा विंडो खुलेगा, खुला सबका। यस सर। इसे तुम क्या करो, साइन इन विद ब्राउजर कर दोगे। एक बार ये होने के बाद तुम्हें यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए मांगेगा कि ऑथराइज दिस, तुम ऑथराइज कर दोगे। पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डाल देना। ओके सो ये हो गया। अगर तुम्हें देखोगे तो तुम्हारा लिख दिया कि ब्रांच इज सेट टू, मतलब एवरीथिंग बहुत अच्छे होगा। एंड नाउ इफ यू ओपन योर रेपोजिटरी यहाँ पे एंड रिफ्रेश इट, यहाँ पे दिख रहा है auth.txt notes.txt। या तो ये बात समझ में आ गई सबको कि गिटहब पे कैसे पुश करते हैं। ये यस सर। सर एक चीज पूछना था सर, जब हम लोग वहाँ ब्रांच स्लैश एम मेन लिख रहे हैं हाइफन एम, तो मतलब हम अपने साइड वाला ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हम कुछ फाइल्स डालेंगे। ऐसा ही मेरा फ्रेंड एक ब्रांच क्रिएट करेगा, वो अपने ब्रांच से डालेगा। हाँ मतलब लेट से ऐसा वो काफी डिपेंडेंट होता है। लेट से तुम अपने फ्रेंड पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो और बहुत ही अच्छा कोडर है, ठीक है, और तुम लोग ही हाँ हाँ बहुत इनिशियल स्टेजेस में हो, ठीक है। तो तुम्हें जरूरत नहीं कि अलग अलग ब्रांच पे काम करो। अगर तुम दोनों को अगर मतलब ये काफी ज्यादा मतलब ऑल्दो इन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस तुम हर एक चीज अलग ब्रांच से ही करते हो, ठीक है, ठीक है। बट इन जनरल तुम अगर चाहो तो ऐसा कुछ नहीं है, लाइक दो लोग सेम ब्रांच पे काम कर सकते हैं, बिल्कुल मतलब कर सकते हैं, बट उन्हें काफी सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। लाइक उसको पता होना चाहिए कि हम उसका पार्ट कोई कोड का ना छेड़े, फिर वो मेरा कोई कोड का पार्ट ना छेड़े। हाँ तो उसके लिए दोनों काम मतलब एक ब्रांच पे भी काम कर सकते हो, बट जैसे जैसे कोड तुम्हारा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। लाइक मान लो कि मेरे को अगर कुछ ऐड करना है, लेट से नोट्स का हमारे ऐप में क्या ब्लॉग्स है, तो ब्लॉग ऐड करने के लिए मेरे को कुछ नोट्स में मॉडिफाई करना है, ठीक है। अब तुमको एक फाइल के लिए दूसरा फाइल भी चेंज करना पड़ रहा है, तो ऐसे में बहुत मतलब मैनेज करना मुश्किल होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, अलग 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 ब्रांच पे स्विच कर जाते हैं, ठीक है। बट वो क्या है, मतलब तुम ऐसा कुछ रूल नहीं है कि तुम एक ब्रांच पे दो लोग काम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं मतलब। तो सर ये ब्रांच एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं जो एक ही रिपोजिटरी में मर्ज हो रहा है। एग्जैक्टली तुम एक देखोगे तो एक मिनट, तुम लोग बेसिकली हम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसलिए हम उतना ये नहीं कर रहे हैं। सो इफ यू सी हम लोगों ने सारा ये डाला हुआ है, तो हम ब्रांचिंग थोड़ा समझा दे रहे हैं। तो बेसिकली ठीक, तो देखो तुम लोग क्या किया कि तुम लोगों ने ऐप का डिसाइड किया कि हम लोग ये ऐप बनाएंगे, ठीक है। अब तुम्हारा
अच्छा ये बहुत जल्दी आ गया, ठीक है, नो वरीज। तो तुम क्या करते हो कि तुम्हें लगता है कि कुछ एक फीचर ऐड करना चाहिए था, लाइक लेट्स से तुम स्टार्टिंग में लॉगिन विथ फोन कर रहे हो और बट तुम्हारा फ्लो होता है लॉगिन विथ फेसबुक होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करता है ना, एक अलग ब्रांच बनाएगा और उस पर काम करेगा लॉगिन विथ फेसबुक के लिए। मीनवाइल तुम अपना बाकी का नोट्स ऐड करते गए, ब्लॉग्स ऐड करते गए, बट समहाउ तुमने डिसाइड किया कि फिर ये नहीं रखते हैं तो इसको छोड़ दो तुम, ठीक है। तो इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया और तुम्हारा फ्रेंड भी इसी में काम करने लग गया, तुमने फीचर ये लॉन्च किया। ये तुम्हारा मेन ब्रांच है, मतलब पहले मास्टर हुआ करता था, अभी मेन हो गया है। तो बेसिकली तुमने ये काम किया, बट अभी तुमने डिसाइड किया कि नहीं, अभी हम लोग ने जैसे मान लो कि ऐप में भी नया अपडेट आया विच वाज लाइक कि ब्लॉग, मतलब बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे मान लो कि अभी मॉड्यूल्स है। तो वो तुमने डिसाइड किया कि मॉड्यूल्स इज अ बिग फीचर, तुमने मॉड्यूल्स 1 डाला, मॉड्यूल 2 डाला, मॉड्यूल 3 डाला, और तब तक तुम तुम्हारा दोस्त इस पे काम, मतलब कोई भी तुम में से एक इस पे काम कर रहा, तुम्हारा दूसरा जो मतलब आदमी था इस पे काम करने लग गया, राइट। एंड सिंस इट इज अ गुड फीचर, तुमने डिसाइड किया कि इसको मर्ज करने का। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए भी है कि तुमने पहला चीज ऐड किया, दूसरा करा, तीसरा करा, बट आफ्टर दैट यू वांट टू ट्राई एन एक्सपेरिमेंट, दैट इज लाइक जो मॉड्यूल्स वाली चीज है वो करा, ठीक है। उसके बाद अगर तुम उसको मर्ज कर दोगे ना, तो पहले क्या है, ये अलग अलग दिख रहा है, राइट। 3 के बाद 4 नीचे आ गया है और इधर कुछ है, बट मर्ज करने के बाद ये सब मास्टर में आ जाते हैं, समझ रहे हो। यस। हाँ, तो बेसिकली ये होता है ब्रांचिंग, कि तुम्हें कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करना है, फिर कुछ अलग ट्राई करना है, तो इसलिए हम लोग ब्रांचिंग करते हैं। तो उसके उसका जो मतलब कैसे करना है वो हम लोग, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है तो उसको हम लोग बाद में समझ लेंगे। बट तुम आराम से कहीं भी अगर समझना चाहो तो हम लोग रेफरेंस डाले हुए हैं यहाँ पे लास्ट में, और यहाँ पे इसमें एक और डाल देते हैं। ब्रांचिंग, ओके। ये 3 या बहुत ही अच्छे रिसोर्स है, तुम लोग यहाँ से भी मतलब आगे की चीज़ें सीख सकते हैं, फिर डाउट वगैरह पूछ सकते हो डिस्कॉर्ड में। बट लेट्स गेट बैक टू और मतलब जहाँ हम लोग सीख रहे थे। तो अगर बहुत अच्छे से समझ नहीं आया तो लोड लेने का जरूरत नहीं है, लाइक हम लोग एक टास्क देंगे और उसमें लाइक अगर हाँ, ऐसे ही कुछ ये सब कुछ क्या होता है ना, बेसिकली द मोर सेशन ले लेंगे अगर द मोर उसको यू प्रैक्टिस ना, वैसे ही तुम लाइक हम लोग भी एक दिन में नहीं सीख पाए थे, तो हम लोग काम करते रहे, साथ में काम किए, प्रोजेक्ट्स किए, और सही करते करते तुम सीख जाओगे। आई फुली अवेयर। हाँ, मतलब ये विथ टाइम स्किल आता है, क्योंकि एक दिन में तुम उतना कुछ कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग भी नहीं कर पाए थे जब हम लोगों ने ये सेशन लिया किया था। तो बट विथ टाइम जैसे तुम काम करोगे तुम सीखते जाओगे। हाँ, ओके। तो हम लोग ने ये सीख लिया कि हम लोग कोड गिटहब पे कैसे डालते हैं। तो ओके, तो एक और टॉपिक समझाना है, पीआर। तो तुम लोग बताओ कि तुम लोग का अगर टाइम का लोड है तो हम लोग उसे बाद में करेंगे, बट इफ यू आर रेडी हम वो बता देंगे अभी। नहीं, एक चीज पहले, एक चीज हाँ। लाइक अच्छा, लाइक हम ही क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो अभी हम लोग पुश किए हैं, तो ये फर्स्ट टाइम पुश करने के लिए स्पेसिफिकली था कि अगर हमको नेक्स्ट पुश करना पड़ेगा तो भी हमको ब्रांच करके लाइक सब कुछ करके करना पड़ेगा, कि नेक्स्ट अगर मान चलो एक फीचर ऐड करना हाँ, होगा। हाँ, सॉरी, ओके। ओके, तो हम लोगों ने अभी क्या किया है कि ये कर दिया, बट लेट से तुम्हें ही कुछ काम करना पड़ा फिर से ऑथ फीचर में, ठीक है। तो हम क्या किए, हमारे पास क्या क्या ये ऑथ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नोट पैड ऑथ खोले और इसमें कुछ ऐड किया कि दिस इज द ऑथ फीचर ऑफ फ्लाइट। अब क्या किए, वी आर एडिंग गूगल ऑथ इन द ऐप, ठीक है। इसको सेव किया। अब हम लोग गिट स्टेटस करेंगे तो क्या दिखाएगा कि ये मॉडिफाई हुआ है, ठीक है, दिखा रहे हैं यहाँ मॉडिफाई हुआ है। हम क्या करेंगे, गिट ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, गिट क्या करते हैं तुम बताओ, कमिट करते हैं ना, -m, क्या लिखेंगे, चेंजेस। ये कोई मैसेज होता है बेसिकली, तुमको ऐसा दिखाना है कि कोई तुम्हारा यहाँ पे देख के समझ जाए कि क्या है। तुम यहाँ दिखा रहा है ना कि दिस इज द ऑथ फीचर, दिस इज द नोट, तुम समझ रहा है कि ये नोट्स है, ये ऑथ है, ठीक है। तो सही, दिस शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तुम क्या लिखेंगे, एडेड गूगल ऑथ इन, एडेड गूगल ऑथ, ठीक है, एंटर कर दिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लोकली कमिट कर दिया हमने, अब हमें क्या करना है, गिटहब पे डालना है। तो अब वंस यू सेट अप दिस ओरिजिन एंड एवरीथिंग, दोबारा गिटहब पे डालने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना होता, यू हैव टू सिंपली यूज दिस कमांड, द लास्ट वन, दैट वाज git push -u origin main, समझ में आया। एंड वंस आई हिट एंटर, ये हो जाएगा, समझ में आया। एंड नाउ इफ आई रिफ्रेश दिस, यहाँ पे 2 की जगह 3 कमिट्स दिखाएगा।
और यहाँ पे क्या दिखाएगा, दिस एडेड गूगल ऑथ। तुम यहाँ जाके चेक भी कर सकते हो कि यहाँ पे मतलब ये कौन सा फीचर कब आया और कब मतलब किस टाइम पे किया गया। सर लास्ट कमांड क्या था? देखो बेसिकली एक बार सेटअप कर लिया, फिर गिट ऐड, गिट कमिट एंड सबसे लास्ट वाला था गिट पुश -u ओरिजिन मेन। तो यहाँ ब्रांच यहाँ कुछ नहीं डालना है मेन में। नहीं, ये बस एक बार हो गया वो ब्रांचिंग वाला काम। अब तुम बस ऐसे काम करोगे, तुम्हें उसी ब्रांच में काम करते रहना है। तो गिट पुश -u ओरिजिन मतलब उस लोकेशन, मतलब उस URL पे, और मेन मतलब उस ब्रांच में। इज इट फाइन? और सर नया ब्रांच बनाने के लिए मतलब जैसे हम ही उसी कोड तो .txt को अगर चेंज करना चाहें तो फिर मतलब जिसका फिर से बोलो। मतलब अलग से अलग ब्रांच बनाने के लिए क्या करना होगा? अलग से ब्रांच मतलब नहीं समझ पा रहे। लाइक अगर मेरे कोड में कोई और कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वो कैसे करेगा? हाँ ओके, अच्छा ठीक है, तो ये भी बता देते हैं। कंसिडर किसको टाइम का लोड नहीं हो रहा ना, मतलब अगर किसको टाइम का नहीं लोड हो सर रहा है। बताइए। हाँ प्लीज सर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हम लोग अभी तक क्या है कि हम लोग सिंगल आदमी काम कर रहा था। अब लेट से किसी और को, लेट से मेरे फ्रेंड को इसमें काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए ना हम लोगों ने एक रेपो बना रखा है। ठीक है, तो बेसिकली लेट से ओके, पहले उनको समझा देते हैं क्या होता है ये। हम्म, हम्म, तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, हम लोग समझते हैं इसका क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट से हमारा एक कोड बेस है। मतलब जैसे हमारा ऐप में ऐप का कोड बेस है, और ये समवेयर लाइक कोई एक आदमी है, लाइक कोई एक तुम में से देखता है कि इसमें एक बग है, एंड यू आर लाइक नहीं, मेरे को ये लैंग्वेज आती है, आई कैन फिक्स दिस। तुम क्या करोगे, तुम उस हमारे कोड को फॉर्क कर लोगे, ठीक है, और वो हो जाएगा। अब पहले क्या था, सिलेक्ट कोड बेस था, अब हो जाएगा तुम्हारा नाम एरिक स्लैश कोड बेस। तुम उसको क्या करोगे, फॉर्क करने के बाद क्लोन करोगे। वंस यू क्लोन इट, तुम उस पर काम करोगे, बग फिक्स किया, और फिर उसको अपना पुश करोगे। पुश मतलब क्या किया, तुम लोकली काम कर रहे हो और काम करने के बाद क्या किया, उसको अपने गिटहब पे डाल दोगे, मतलब समझ रहे हो, पुश कर दोगे, लाइक गिट पुश -u ओरिजिन में। तो वो तुम्हारे गिटहब पे आ गया। अब तुम्हारे गिटहब से क्या हमारे हमारे मेन कोड में आना है, तो उसके लिए क्या करोगे, तुम एक पुल रिक्वेस्ट डालोगे, और फिर हमारा कोई हमारे टीम में से कोई एक आदमी होगा, एंड उसको टेस्ट करेगा, एंड वंस वी फाइंड आउट कि अच्छा ये तो काम कर रहा है, मतलब दिस इज लाइक मेकिंग और बग बग को फिक्स कर दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसे मर्ज कर देंगे, एंड नाउ हमारा कोड इज फ्री ऑफ बग, एंड नाउ हियर इट विल बी शोन दैट इट इज डन बाय यू। तो बेसिकली ये एक वर्कफ्लो होता है ऑफ कंट्रीब्यूटिंग इनटू एनी रेपोजिटरी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, वी विल जस्ट गिव यू ऐसे मान लो ये लिंक है, तो जस्ट चेक द चैट सेक्शन। हम लोग तुम लोग ना क्लाइंट के कोड बेस में कुछ डालोगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, सब कुछ हम लोग करेंगे। तो ये तुम लोग लिंक देखो, मीटिंग में डाल दिया है। तो पहला चीज़ क्या है कि लेट्स से यू फाउंड, तो यहाँ पे कोई बग तो नहीं है, बट लेट्स से तुम्हें इसमें कुछ इसी में चेंज करना है, लेकिन से तुम्हें इसमें ऑथ ऐड करना है, ठीक है। आर यू फॉलोइंग अलॉन्ग विथ मी? यस सर। एक मिनट, जस्ट ये पार्ट मत फॉलो करना, हम बता रहे हैं आगे क्या करना है। ठीक है, तो तुम देखो कि auth.txt में क्या है, एक दिस कंटेंट्स अ बग, मतलब इसमें एक बग है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको फॉक करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब तुम यहाँ से तुम ये लिंक खोल लो, तुम लोग को लिंक भेज दिया चैट में, मीटिंग चैट में।
सबको दिख रहा है ना लिंक? यस सर, खोलिए। ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन इट एंड इफ यू क्लिक ऐसा कुछ खुलेगा एंड तुम इसमें फॉर्क पे क्लिक करो और फॉर्क में देखोगे तुम्हें बस एक ही चीज दिखेगी, दैट इज योर यूजर नेम। तुम उस पर क्लिक करोगे तो ये दिखाएगा कहाँ पे फॉर्किंग। क्लिक? सॉरी, कहाँ पे करना है? ये नहीं दिखा। क्लिक कहाँ फॉर्क पे करना? फॉर्क फॉर्क, इफ यू सी हियर, राइट में टॉप, टॉप में या फॉर्क का दिख रहा है ना? हाँ। हाँ, तो वहाँ पे क्लिक करो। तो अब तुम्हारा क्या लिखेगा? अब तुम्हारा नाम स्लैश कोड बेस लिखेगा। देख मेरा नाम ओ राजू है तो यहाँ दिखा ओ राजू स्लैश कोड बेस, बट यहाँ पे तुम्हारा नाम स्लैश कोड बेस दिखा रहा होगा, यस यस, आ गया। राइट? सर तो इससे हाँ सर इससे एक तरह से हम लोग के गिटहब अकाउंट में रिपॉजिटरी क्रिएट हो गया हाँ ये वाला। एग्जैक्टली तुम, हाँ, और तुम्हें दिखाएगा कि कहाँ यहाँ दिखा रहा है ना कि इट इज फॉर्क्ड फ्रॉम clite स्लैश कोड बेस, हाँ फाइन। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुमने ये कर दिया, अब तुम क्या करोगे, तुम इसको कोड में जाके और जो ये है ना https, इसको कॉपी कर लोगे यहाँ पे, कॉपी पे क्लिक करके। सर कैन हाँ, यू फॉग की तो उसके बाद से थोड़ा फॉर्क करने के बाद कुछ नहीं करना है, फॉर्क करने के बाद सिंपली कोड पे क्लिक करना है और ये कॉपी कर लेना है। ओके सर। यहाँ तक सबने कर लिया? यस सर, हो गया वहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, लेट्स से कि ये प्रोजेक्ट हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग बैक जाते हैं एक फोल्डर, ठीक है? क्लाइट क्लोन के बाहर आ जाओ, ठीक है? अब ls pwd करो, क्या लिख रहा है? यूजर पे चला गया। कहाँ चला गया? यूजर स्लैश मतलब अखिलेश, जो उस पे चला गया। ओके, हाँ, तो अब तुम क्या करो ना कि डेस्कटॉप पे आ जाओ, ठीक है? डेस्कटॉप शो नहीं कर रहा था सर मेरा उस पे। सॉरी, मतलब जहाँ पे भी हो, तो मतलब वहाँ पे चलेगा ना? तो अब क्या करोगे, सब एक फोल्डर, मतलब ऐसा करो कि यहाँ पे कुछ मेन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मेन वगैरह मतलब नहीं दिखना चाहिए। तुम मतलब जो तुम फोल्डर में थे उससे बाहर निकल जाओ। सिंपली क्लोज इट। हाँ, इंस्टेड ऑफ तुम लोग एक बार इसको क्लोज करके और एक बार फिर से गिट बैश खोल सकते हो। यस सर। तो उसके बाद तुम जाके जा सकते हो, डेस्कटॉप पे चले जाओ और उसके बाद क्या करो, गिट, सॉरी, गिट clone, और फिर क्या करोगे उस, नो डायरेक्टरी फाउंड, मतलब नो सच फाइल और डायरेक्टरी लिखता है। हाँ, तो डेस्कटॉप नहीं, तुम डायरेक्टली कर दो, तुम डायरेक्टली गिट क्लोन और ये पेस्ट कर दो, जिसका, सॉरी, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ से ये कॉपी करी, कोड में जाके इसको कॉपी करा, फिर हम क्या करेंगे, गेट क्लोन कर देंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग, हाँ, ओके। तो इंस्टेड ऑफ पेस्टिंग ना, पेस्ट में कुछ प्रॉब्लम होता है, हम लोग ये चीज़ को टाइप कर देंगे, github.com स्लैश, तुम लोग अपना यूजर नेम डालोगे स्लैश कोड बेस डॉट गिट। तो ये टाइप कर दो कि वो पेस्ट करो तो कुछ प्रॉब्लम आएगी, कुछ स्पेसेस का दिक्कत होता है। तो क्या करना है तुम्हें, git स्पेस क्लोन स्पेस https github.com स्लैश योर नेम एंड ये यहाँ जो लिखा हुआ है ना, यही चीज लिखनी है विथ डॉट गिट एट द लास्ट। ये हो गया सबका। यस सर। वंस यू डन, एंटर करो, तो टाइम लगेगा, ये आ जाएगा कि मतलब ये आ गया सब में। यस यस। इफ ये आ गया होगा, तुम एल cd करके अब कहाँ जाना है हमें, कोड बेस चला जाएगा, cd कोड बेस, ठीक है? एंड इफ यू आर डन विथ cd कोड बेस, देखोगे तो इसमें क्या है, auth.txt है और readme.txt है ना? तो हमें क्या करना था, ऑथ वाले में बग फिक्स करना है, तो हम क्या करेंगे, नोट पैड auth.txt और दिस इज अ बग, इसको हटा देंगे और लिख देंगे
हटा दो और क्या करो द, ठीक है, बगैर मतलब बेसिकली तुम समझ रहे हो, हम लोग कोड नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस इसके थ्रू खेल रहे हैं, मतलब हम लोग गिट गिटहब सीख पाए। तो ये करके सेव कर दोगे। अब हम लोग करेंगे गिट स्टेटस, तो दिखाएगा कि देखो इसमें हम लोग क्या गिट ये ऑथर टेक्स्ट ही मॉडिफाई किया है, राइट। तो अब हम क्या करें, इसको वापस गिट में गिटहब में भेजना है। राइट। हेलो। यस सर। हाँ, तो यहाँ वापस गिट में हम लोग क्या करेंगे, गिट ऐड करते हैं पहले। बेसिकली स्टेटस से कुछ मतलब नहीं, तुम चेक करते हो कि क्या हुआ है। लाइक यहाँ पे दिखा रहा है ना मॉडल, इसका तुम इसके बिना भी कर सकते हो, बस चेक करने के लिए स्टेटस है कि अभी क्या स्टेटस है, मतलब इसका लिटरल मीनिंग है। तो वंस यू आर डन विद इट, हम क्या करेंगे, गिट ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, auth.txt, ठीक है। एंड वंस यू डन विद txt, हम लोग क्या करेंगे, गिट क्या बोलते हैं, कमिट करेंगे, ठीक है। कमिट -m द बग हैज बीन फिक्स्ड, सॉरी, ठीक है, सॉरी, मतलब यहाँ यहाँ क्लोज कर देना, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा होगा। तो ये करने के बाद हम क्या करते थे, इसको पुश करते हैं। कैसे, गेट पुश -u origin main, ठीक है। सर हम्म, द बग हैज बीन फिक्स्ड के बाद मतलब वो बंद नहीं था क्या, मतलब क्या करना था? बंद करना है, सॉरी, वो बंद, हम बंद नहीं किए थे, वो बंद करना है तुम्हें। अगर नहीं करोगे तो फिर मतलब बाद में तुम्हें नेक्स्ट लाइन में आके फिर वही करना पड़ेगा, बंद करके एंटर करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ बंद किया हुआ ना एक नोट कॉमा से, यस मैंने सर। गलती से छोड़ दिया था, वो तुम्हें बंद करना है, हमेशा बंद करना होता है। तो वंस यू आर डन विद इट, क्या करना है, गेट पुश -u origin main, ओरिजिन के बाद क्या था सर, मेन? ऑरिजिन मेन। या तुम मेन, ऑरिजिन मतलब तुम्हारा वो तुम डाले हो जो मतलब पहले से, और मेन मतलब तुम्हारा ब्रांच का नेम। सर -u पुश -u origin main, हो गया सर। हो गया। अब हम लोग जाके तुम अपना गिटहब रिफ्रेश करोगे, हाँ, जहाँ पे फॉक किए थे तो तुम्हें दिखाएगा कि नीचे रिफ्रेश करो, कमिट हुआ है सर। हाँ, और दिखाया कि ये भी दिखाया कि दिस ब्रांच इज 1 commit ahead ऑफ clite main, दिखा रहा है। यस सर। तो अभी तक हम लोग ने अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में, एरे के कॉन्टेक्स्ट में समझे, तो हम लोग क्या किया, एक मिनट, तुमने ये देखा, एक प्रॉब्लम देखा, उसको पहले फॉक किया, ठीक है। फॉक करने का क्या किया, गिट क्लोन किया, फिर हम लोगों ने अभी क्या किया, काम कर दिया है और हमने पुश कर दिया है, ठीक है। हमें क्या करना है, एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट करना है, ठीक है। तो हम वापस जाएंगे अपने गिटहब वाले पेज पे, यहाँ कंट्रीब्यूट दिखा रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ दिखा ना ओपन पुल रिक्वेस्ट, इस पे क्लिक करेंगे। एंड वंस यू क्लिक ऑन इट, यहाँ ऑप्शन आएगा फिर से क्रिएट पुल रिक्वेस्ट का। तुम्हें अगर कुछ लिखना है मैसेज कि तुम्हें कोई स्क्रीनशॉट डालना है, फिर कुछ अगर तुम ऊपर वाला की सीलाइट कोड बेस मेन और राजू कोड बेस मेन से उसमें जा रहा है, ये एक्सप्लेन करो। हाँ, मतलब बेसिकली ये तो मतलब बेस रिपोजिटरी क्या है, तो ये हमारा हमारा अपना है कि ओराजू कोड बेस मेन, और ये जा कहाँ रहा है, सीलाइट कोड बेस से। तो बेसिकली ये देखो तो ब्रांच दोनों में सेम ही है, बट अगर तुम चाहो तो अलग ब्रांच बना के भी, अगर तुम्हारे पास कोई और ब्रांच हो, तुम यहाँ से तुम मतलब इसके कुछ और ब्रांच है तुम उसमें भेज सकते थे, समझ रहे हो। पुल वाला कहाँ से स्टार्ट हुआ था सर, वहाँ पे मतलब नहीं देख पाए। यहाँ पे, हाँ, ओके, एक मिनट, यस कंट्रीब्यूट सर। देखोगे, कंट्रीब्यूट से ओपन पुल रिक्वेस्ट होगा, इस पे क्लिक करोगे यस तो सर। तुम्हें फिर दिखाएगा क्रिएट पुल रिक्वेस्ट।
यहाँ पे इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग लाइक एक्सप्लेनिंग योर कोड कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, क्या गलती थी वहाँ पे, तुम्हें कुछ भी लिखना है बिकॉज बेसिकली दिस विल बी रेड बाय ऑल ऑफ लाइक जिसको तुम भेजोगे, क्योंकि दिस इज नॉट योर कोड, रिमेंबर ये किसका कोड है, ये सीलाइट का कोड है। तो अब वहाँ के लोग देखते हैं ना कि व्हाट इज द चेंज दैट यू हैव डन, तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तुमने ये क्यों किया। तो तुम उसको करते हो बेसिकली एज ऑफ नाउ राइट की आई फिक्स्ड दिस बग इन auth फाइल, ठीक है। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे जाके क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर देंगे। एक बार तुम पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे तो फिर हाँ देखो बहुत लोगों ने अब ना कंसिडरिंग हम एडमिन है, मतलब जो भी सिलेक्ट का एडमिन होगा उसको यहाँ दिखने लगेगा कितने लोगों ने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया है। देखो यहाँ पे अखिलेश मिश्रा का पुल रिक्वेस्ट आ गया, हिमांश का आ गया, मेरा आ गया, हर्ष का आ गया, सॉरी हर्ष का, हाँ गेट माई पॉइंट। तो अगर कोई भी अगर सिलेक्ट का एडमिन होगा तो इसको मर्ज कर सकता है, ठीक है। अब कंसिडरिंग हम खुद एक मतलब एडमिन है सिलाइट के, तो राइट ऑफ एज ऑफ नाउ आई एम नॉट इंटरेक्टिंग एट एज ओ राजू, ठीक है। ये तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, तुम लोग को ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, एम आई राइट? यस सर। हाँ तुम्हें नहीं दिख रहा है, तो आई कैन सिंपली रिप्लाई हिम कि हे हिमांश दिस इज हे हिमांश ग्रेट वर्क, और फिर कुछ भी लाइक थैंक्स फॉर कंट्रीब्यूटिंग, एंड फिर हम इसको कमेंट कर देंगे। तो ये वहाँ दिखाएगा हिमांश को कि लाइक हम उसको ये किए, एंड देन आई कैन सिंपली तो ये अब ये तो कंप्लीटली इस ऑर्ग के ऊपर है कि वो लोग मर्ज करते हैं कि नहीं तुम्हारा कोड बेस, लाइक अगर तुम्हारा कोड सही है तो दे विल मर्ज इट, एंड आफ्टर दैट द कोड विल बी लाइक बग फ्री। तो अगर फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि हिमांश का कोड बेस मतलब कोड एज एन एडमिन ऑफ क्लाइट हम हिमांश के कोड को मर्ज कर देते हैं। तो इफ वी मर्ज इट, देखो यहाँ मर्ज के आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि अगर auth.txt खोलेंगे तो यहाँ पे दिस बग इज सॉल्व, राइट। तो ऐसे यहाँ पे कंट्रीब्यूटर का कौन दिखा रहा है, हिमांश। यस सर, मेरे साइड भी मर्ज्ड वाला आ गया बटन। हाँ तो अगर वैसे ही कंसीडरिंग अब एक एक ये बग तो फिक्स होगा तो दोबारा इसको फिक्स करने की जरूरत नहीं है, तो बट लेट्स से तुम किसी और बग को फिक्स करोगे तो यहाँ पे सबके पुल रिक्वेस्ट दिखेंगे, एंड देन वो जिसका मतलब जिसका भी इफेक्ट लाइक एक जनरली क्या होता है कि एक इशू पे एक ही लोग काम करते हैं, राइट। और तो तुम लोग आगे समझो कि इश्यूज का क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो जैसे हम लोग ने मर्ज किया, अब यहाँ पे कंट्रीब्यूटर में देखो दो लोग दिखा रहे हैं, ओ राजू और हिमांश दिख रहा है। तो दिस इज हाउ यू मतलब सेंड अ पुल रिक्वेस्ट, एंड मतलब दो लोग एक साथ काम करते हैं। तो मतलब दिस वाज ब्रीफ ऑफ लाइक वर्कशॉप। तुम्हें और भी लाइक आगे पढ़ना है तो हम लोग कुछ टास्क वगैरह देंगे या फिर कुछ और मतलब कुछ एडवांस सेशन लेंगे, बट दिस इज द रिसोर्सेज दैट यू कैन रेफर टू, मतलब बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज हैं। और ऑल ऑफ यू मतलब हाँ मतलब दिस वाज इट आई गेस, वी शुड एंड दिस, बहुत लंबा हो गया। यस हाँ सर, कोई भी डाउट, टास्क दीजिएगा, इसका इसका प्रैक्टिस हो जाएगा सर, टास्क। हाँ हाँ टास्क हम लोग दे देंगे। और कुछ डाउट है क्या किसी को? एक चीज डाउट, था सर, सर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में भी ऐसे ही करते हैं एग्जैक्ट। हाँ एग्जैक्टली बेसिकली तुम क्या करना होता है, तुम्हें कोई भी इशू दिखा तो तुम फॉर एग्जांपल देखो इफ आई हैव कंट्रीब्यूटेड इन लाइक ऑफ द ऑर्ग, कोई क्रिएटिव कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैंने मतलब कंट्रीब्यूट किया था। तो बेसिकली व्हाट यू डू ना, तुम ऐसे जाके जनरली बस ये नहीं करते हो, उसका थोड़ा सा अलग होता है कि तुम्हें इश्यूज पहले चेक करना होता है। मान लो ये इश्यूज है, ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हें जाके यहाँ लिखना पड़ता है कि हे आई वांट टू टेक दिस इशू। तो इसके जो मॉडरेटर होंगे तुम्हें असाइन करेंगे, और उसके बाद तुम उस पर काम करना स्टार्ट करते हो। बाकी सब कुछ सेम रहता है, बस तुम्हें जाके उसको बोलना पड़ता है कि हे आई वांट टू टेक दिस इशू, और मतलब आई विल वर्क लाइक टू वर्क ऑन दिस इशू।
बस ये, इसके अलावा कुछ नहीं. इफ यू वांट आई कैन शो यू. हम आपको शो मतलब बेसिकली वही कहा था, मेरा इशू तो बहुत नीचे होगा. तो यू गेट माई पॉइंट कि बस उसमें कुछ नहीं करना था तुम्हें, बस जाके इश्यूज पे कमेंट बोलना होता है कि हम ये करना चाहेंगे, so that कि एक ही लोग 10 चीज पे मतलब बहुत सारे लोग एक ही चीज पे काम ना करें. तो एंड वंस यू आर, तुम्हें असाइन हो गया वो, तुम सेम चीज पहले पॉक करोगे, फिर क्लोन करोगे, फिर अपना फिक्स करोगे, फिर पीआर भेजोगे. समझ गया सर, थैंक यू तो सर. ये होता है. और मतलब हाँ, और तुम लोग कंसिडरिंग लास्ट तक यू मस्ट बी नोइंग अबाउट अस. तो मतलब बेसिकली वी आर मतलब डूइंग दिस थिंग्स, तुम्हें सबको आइडिया ही होगा. Those of you who don't know, मतलब we are basically an edtech startup aiming to solve student लोग के problem and provide them with career guidance. We have an app through which we provide regular blogs uh, and academic resources and everything. Our Discord is there जहाँ पे तुम लोग doubts पूछ सकते हो. And we are live in these colleges. और we would love if तुम लोग जाके like at least I would not say you to bring more childs. I would just say you to just tell other people about it कि हाँ ये चीजें हो रही है, like so that if anyone is interested वो आएगा ही. मतलब you don't have to force anyone to come here, but you just have to make the audience aware कि हाँ there is something like that which is like very helpful to everyone. So if they wish, they may join in our like any of our groups or any of our workshops. So this was from our side.